Good morning, children. Today we are going to start new chapter of your class, that is chapter 14, factorization. This chapter is the most important chapter, you can say, which will create a foundation for your higher classes. Okay. Now, first of all, let's understand the meaning of this word factorization. Okay. Now, when you will look at this word factorization, here you can see the word factor. फैक्टर वर्ड आप लोगों ने क्लास 6, क्लास 7, क्लास नाउ यू आर लिसनिंग इन क्लास 8 ऑल्सो. In class 8, we will be studying a great version of factor. Okay, that is factorization. If I will revise you the term factor, then what does it mean? Supposingly, I am writing here a number 12. Okay, now if I will talk about the factors of 12, then see. Factors of 12 means what are the tables in which 12 will come. That is 1. In table of 1 also 12 will come. 2, 3, 4, 6 and 12. So these all are factors of 12. Okay. Or in other words, I can also say that 12 can be written as 1 into 12. So both 1 and 12 are factor of 12. Similarly, 12 can be written as 2 into 6 or 6 into 2. So 2 and 6 are also factor of 12. Similarly, 12 can be written as 3 into 4. So 3 into 4 or 4 into 3. So 3 and 4 are factors of 12. So it's very easy to discuss factors when numbers are given, when a constant value is given. Okay. Now from these factors, we have learned certain specific terms like how we can find common factors of two given numbers, how we can find highest common factor of the two given number, how we can find the common more than two common factors. ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स से रिलेटेड, एक बार हमें फैक्टर समझ में आ जाए फिर हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, एक कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टर्स में बेसिकली क्या करना है, जो भी आपको टर्म दिया है, दिस कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो अ टर्म. ठीक है, तो जो भी आपको टर्म दिया है उसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है, उस टर्म को हमें दो डिफरेंट टर्म्स के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, नंबर्स के केस में फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो जाता है, बट व्हेन आई एम हैविंग सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल लाइक आई एम राइटिंग 5x minus 10xy. okay, so in this expression, this is one algebraic expression. In previous chapter also I have explained you the difference between term and expression. This 5x individually will form a term. ठीक है, this minus 10xy will also form a term, but togetherly with minus sign or plus sign they will form an expression, and this is an expression having two terms. That's why we can call it as binomial also. Okay, this is a binomial expression which is having two terms. Now see, if I have to factorize this, so first of all I will factorize each term individually. 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into x. Similarly, minus 10xy can be written as minus 10 into x into y. This minus 10 can be further simply factorized like minus 1 into 2 into 5. माइनस के लिए मैंने माइनस 1 कर दिया, देन 2 5s are 10 into x into y. So this is a simple factorization I have done for both the terms. Now supposingly they are saying find the common factors. Find the common factors in these two terms. So you all can see that 5 is in both and x is in both. So the common factor of both the term is 5x. So this is the basic concept of factorization. In factorization, we split the terms in the form of product of two different numbers, expression, variable और terms. ठीक है,
हम उसको प्रोडक्ट में स्प्लिट कर देते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर व्हेन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। Now discuss some questions of exercise 14.1. In this, first question is find the common factors of the given term. हमें common factors निकालने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, 12x and 36. What I will do? First of all, I will find out the common factors individually. 12x means 2 into 3 into 2 3 6 इंटू 2। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए फैक्टराइजेशन में एक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड भी सुना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं। यूजुअली हम किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 2 is 4 4 is 12 into x। नाउ फॉर 36 2 into 2 into 3 into 3। ये कैसे लिख रही हूं मैं, ये आप लोग ऐसे करके देख लीजिए। देखिए 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सबसे पहले 2 से करेंगे 18, देन अगेन 2 9, देन 3 and then 3 1। Okay, so whenever you have to do the factorization, just follow the prime factorization because that will give you all the factors without any thought। आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप फैक्टराइजेशन करोगे आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। Now what are the common factors? This 2 is common, okay, this 2 is also common and this 3 is common. So common factors are 2 into 3 into 2, so that is 12। 12 is the common factor of 12x and 36। देखिए अभी हम इसको बहुत आराम से कर रहे हैं, but when you will do more and more questions of such type, then you will be expert in finding the common factors just by observing the question, and for that your table should be strong। Like supposingly if I am not doing this long calculation, then just by observation I can see this is 12x and 36। 12x और 36 में to both 12 and 36 are coming in the table of 12, so 12 can be taken out as common। Similarly for second part is 2y and 22xy। एक तरीका क्या है, 2y का आप लिखोगे 2 into y, 22xy को क्या लिखोगे 2 into 11 into x into y, then you will find out the common factors। दूसरा तरीका मुझे डायरेक्टली, आप अगर ऑब्जर्व करो, देखो दोनों में y कॉमन है, कॉमन फैक्टर की बात करें y दोनों में है, और नंबर को देखिए अगर आप 2 और 22, then both are coming in the table of 2, so 2 can be common। This is common factor of second part। लेकिन आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सारे पार्ट्स इस तरीके से करने हैं, लॉन्ग प्रोसेस से, एक एक टर्म का निकालिए, देन वी विल फाइंड कॉमन। सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट में अगर हम देखेंगे क्या है, 14pq 28p² q²। अब देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, 14pq का क्या मतलब है, 2 into 7 into p into q। 28p² q² का क्या हो जाएगा, 2 into 7 into 2। ओके, p² है मीन्स p into p, 2 बार p आएगा। q² का क्या मतलब है, q into q। नाउ लेट्स लुक एट द कॉमन थिंग, 2 7 p and q। So common factor is 2 into 7 into p into q, that is 14pq। ये तो लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट में देखोगे आप, देखो नंबर्स में देख लो, 14 और 28 में क्या कॉमन निकल कर आ रहा है, 14 एंड 28 में बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 14, सो 14 यू कैन टेक इट एज कॉमन। मैक्सिमम जिस टेबल में कॉमन आ रहा है उसको लेंगे। पीक्यू यहाँ पे एक बार है, यहाँ दो बार है, तो कॉमन निकालना है। देखो इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, कम वाला कॉमन निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ 2p 2q है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो इसमें से हम कैसे निकालेंगे, तो हम 1p और 1q ही कॉमन निकाल सकते हैं। वेरिएबल में से मिनिमम निकालते हैं और नंबर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 14 और 28 को देखोगे तो पहले आपको लगेगा भाई 2 भी कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सही, लेकिन हमें 7 भी कॉमन है दोनों में, ओके, लेकिन 14 भी कॉमन है, तो हम नंबर्स में
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और वेरिएबल में मिनिमम पावर वाला वेरिएबल बाहर निकालेंगे। आपको ज्यादा समझ में नहीं आया अगर ये, तो सिंपल आप इंडिविजुअली फैक्टराइज करो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, डोंट टेक रिस्क, फैक्टराइज ईच फैक्टर एंड देन फाइंड आउट द कॉमन वन। ओके, सिमिलरली फोर्थ पार्ट में देखिए क्या क्या है। 2x, 3x स्क्वायर, 4। देखिए नंबर्स में अगर आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। 2, 3 और 4 में सिर्फ 1 ही कॉमन है। सो देयर इज नथिंग कॉमन इन नंबर। इफ आई विल लुक एट द वेरिएबल ऑल्सो, हियर इट इज x, हियर इट इज x स्क्वायर, बट विथ 4 देयर इज नो सच टर्म ऑफ x। सो नथिंग इज कॉमन, ओनली 1 इज कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसका क्या निकल के आ जाएगा? 1। सिमिलरली फॉर फिफ्थ पार्ट, 6abc, 24ab square, 12a square b. You will do this question by yourself. Fifth, you will do it by yourself. Just split all the terms and then find out the common one. Similarly for sixth part, 16x cube, इसमें भी आप split करेंगे and then we will find out the common one. Now for seventh चलिए मैं आपको explain कर देती हूँ. In seventh it is 10pq, 20qr and 30rp. Now for 10pq it will be 2 into 5 into p into q. 20qr के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 2 into q into r. 30rp के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 3 into r इंटू पी। अब देखिए P इन दो में है, Q इन दोनों में है, R इन दोनों में है। वेरिएबल में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तीनों में है। नंबर्स में आप देखेंगे 2 और 5 तीनों में है। ओके, सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10। सिमिलरली फॉर द लास्ट पार्ट ऑल्सो जस्ट स्प्लिट ऑल द टर्म्स एंड फाइंड आउट द कॉमन वन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू इट लाइक दिस। सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल सेम है, बस सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इन दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा दिया है और हमें बोल दिया उसको फैक्टराइज करने को। तो देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस उसके करके दिखाऊंगी। नाउ इफ आई विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। Now in first they wanted to know only the common factors, but in second they want to factorize the expression. Now it's again very simple, 7x minus 42। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दी गई है कैसे आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। नाउ आफ्टर डूइंग दीज मेनी क्वेश्चंस यू विल डेवलप हैबिट दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे मुझे इसको देख के ही पता लग रहा है दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इसका क्या बना, बचा x और इसका क्या बचेगा, 7 बाहर आ चुका है 42 में से। जैसे 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6, 7 6 42, 7 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 6। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली एक और पार्ट देखिए, लाइक 6p माइनस 12q। इसको आप लोग मुझे देख के ही बता देंगे, आपको देख के समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है। देखो 6p को हम 6 इंटू पी लिख सकते हैं, 12q को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू क्यू। तो 6 दोनों में आ रहा है, 6 बाहर आ जाएगा, इसका बचेगा p और इसका बचेगा 2q। ओके, इट्स अगेन वेरी सिंपल। देन फॉर थर्ड पार्ट 7a स्क्वायर प्लस 14a। नंबर्स को देखोगे 7 और 14 में से 7 कॉमन आ रहा है, वेरिएबल को देखोगे तो a कॉमन आ रहा है। सो 7a विल कम एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट आई विल हैव a प्लस 2। ठीक है, 7a स्क्वायर का a बचेगा और 14a का 2 बचेगा। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आए, ठीक है, तो मैं आपको लॉन्ग वे में भी करके बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, दिस वॉज द क्वेश्चन, इसको लिखिए 7 इंटू ए इंटू ए। ओके, ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, प्लस 2 इंटू 7 इंटू ए। अब देखिए इधर और इधर प्लस के दोनों तरफ क्या कॉमन है, एक तो 7 कॉमन है और एक a कॉमन है।
So 7a will come out. ये निकाल लिया हमने और ये निकाल लिया. इसका क्या बचा? a और इसका क्या बचा? 2. तो जब तक आपको लॉन्ग मेथड से ना अच्छे से आ जाए तब तक आप शॉर्टकट पे मत जाइए. सिमिलरली वी कैन डू फॉर अदर पार्ट्स ऑल्सो. आगे वाले पार्ट्स के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे ही. अब जैसे मैं आपको एक 7th पार्ट करके दिखा देती हूँ. 7th पार्ट में क्या है? इट्स 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर. अब देखिए वेरिएबल में इधर a है, b है, c है. नो वेरिएबल इज कॉमन. इफ आई विल लुक एट नंबर्स 10, 15 and 20. What is common in both? 5. So 5 will come as common. इसका क्या बचेगा? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर. So in this way directly I can write down the answer. The same way you can do for other parts also. जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो और जो बच गया है उस पूरे को ब्रैकेट में लिख दो. ओके. So in this way you can try all the parts of second question also, and the next questions we will discuss in our next class. Thank you everyone.